Hello, my name is Dev, and today we are going to start the Python string series. Today, in this video, I'm solving the 10 questions of strings in depth and details. I hope every question of the strings you will solve first, and then I will solve. Okay, so these are the 10 questions of the strings. Today I'm solve these questions because I'm going to start the 100 questions series of every topic of the strings for increase for enhance our technical skills. So let's get start the videos without wasting time. So these these 10 questions we are solving on those two platforms. First one is VS Code and second one is Python online compiler. So both are the platforms are same for practice. You can practice both, and if you have any other platform, so you can use other software to solve the problems. So in this video I'm using two software, VS Code and second one is online Python compiler. Online Python compiler. So research this online Python compiler and open this link, and your Python compiler is ready to solve your questions. So let's get start without wasting time. So these are 10 questions. You can try to solve these questions first. If you don't have issue, so you can watch the video and solve it. Yeah, if you have any doubt, so you can ask the chat GPT like me, but I'm a student like you. So let's get started. So the first question is write a Python program to find the length of the string. Once things or in this video I'm trying to every questions to solve different methods. I know we can solve the problems only one methods, but we are trying to solve every questions in two or three ways. So let's get started. So first one is write a Python program to find the length of the string. So copy it and paste it and comment these questions. Okay. So this question tells write a Python program to find the length of a string. So हमें string की length को find करना है. Like string क्या होती है? String simple way में समझे तो हम it is a like a character in closed quotes. Quotes के अंदर हमारे number of characters होते हैं जिनको हम store करते हैं. So that is called string कहलाती है. थ्री टाइप की होती है, सिंगल स्ट्रिंग, डबल स्ट्रिंग एंड ट्रिपल क्वाइट स्ट्रिंग. So like str equals to they. So there are three characters. So these are called string because it includes in the quite. So these are like string. So a single character string. This is a single character string, and you can use a triple quite comment. Triple quite. This is also the string. So again, str equals to uh, save and str equals to save. So these three are all strings, and this is your comment. Okay, so we'll get on the first question. Write a Python program to find the length of a string. So we need to find the length of the string. If we have a string like str equals to like hello, hello. So question ask we need to find the length of the string. हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है. सो हमारे पास कितने करेक्टर हैं. स्ट्रिंग क्या फाइंड करती है, एक पूरे करेक्टर को फाइंड करती है, ना कि हमारी पूरी लेंथ को फाइंड कर, ना कि पूरे वर्ड को फाइंड करती है. तो स्ट्रिंग ट्रीट क्या करती है, लाइक यहाँ पे हमारा वन करेक्टर, टू करेक्टर, थ्री करेक्टर, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11. सो इसके अंदर हमारे 11 करेक्टर है. तो अब हमें पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स इसके अंदर है. सो एक चीज और है, मैं आपको समझा देता हूँ. एस टी आर मतलब जो हमारी स्ट्रिंग होती है और जो हमारी लिस्ट होती है पाइथन के अंदर, अगर हम लिस्ट के अंदर बात करें तो वो पूरे एक वर्ड को काउंट करती है. अगर हम बात करें तो जीरो इंडेक्स पे क्या है स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर जीरो इंडेक्स पे है हमारा एच.
बट अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो जीरो इंडेक्स तो हमारा ये पूरा वर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है, तो ये पूरा वर्ड एक जीरो इंडेक्स है। बट इन द स्ट्रिंग ये हमारा जीरो लेंथ, जीरो हमारा एच है। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है। बाकी स्टार्ट करते हैं। अब हमें एस टी आर फाइंड करना है, हमको वेरिएबल इसमें स्टोर कर लेंगे। सो क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमें लेंथ फाइंड करना है, सो वी आर यूजिंग द लेंथ, we are using the len to solve this problem. So okay, so len bracket str, so this is the correct way to find the length, because uh, in this java या c language we are, इसको हम ऐसे राइट करते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू में हम लिखते हैं लेंथ डॉट एस टी आर ब्रैकेट। सो इन जावा में और सी के अंदर हम कुछ ऐसे लिखते हैं सिंटेक्स को, बट पाइथन के अंदर कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे। सो दे आर बहुत डिफरेंट टू राइट द कोड। सो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसको भी एक बार रन करके देखेंगे और इसको भी एक बार रन करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। So your answer is 11, so it is correct। so string क्या काउंट करता है, देखो string ने इसमें स्पेस को भी काउंट करा है, ओनली स्पेस को भी काउंट करा है। ये नहीं कि string ने इसमें स्पेस को काउंट नहीं करा, स्पेस को भी काउंट करती है हमारी स्ट्रिंग। इसमें टोटल हमारे कैरेक्टर, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस और इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे 12 करेक्टर हो जाएंगे टोटल, ये 12 हो गए। एक स्पेस और फिर 13 करेक्टर, एक स्पेस और 14 करेक्टर, अगर मैं लास्ट में भी स्पेस लगा देता हूँ तो 15 करेक्टर। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आप यूजर से भी इनपुट लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। कैन आस्क फ्रॉम द यूजर्स इनपुट इनपुट द string। Okay, so you can ask through the user. So this is the way to ask input का हम यूज करते हैं यूजर से क्वेश्चन करने के लिए। So okay, हम देखते हैं यहाँ पे हेलो, हेलो में ओनली 1 2 3 4 5 करेक्टर्स है, तो इसने 5 लेंथ बता दी इसकी, ठीक है। ओके, इसको लिखते हैं, हेलो के बाद हम एक स्पेस लगा देते हैं, अब एंटर करते हैं हम इसको, तो देखो 6 करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक हमने स्पेस को भी लगाया है, तो यहाँ पे आता है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। सो एक बार हम ट्राई कर रहे थे, हम इसको थोड़ा वो कर देते हैं, हम यहाँ पे इस चीज़ को भी ट्राई कर रहे थे कि हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। सो देखो, इट गिव योर एरर, कि यहाँ पे एरर है लाइन नंबर 5, दिस इज योर लाइन नंबर 5, इट गिव एरर। एंड देन अगर मैं इसको लेंथ भी करता हूँ, लेंथ लाइक दिस फोर लेंथ, so it give error, so this is not the correct way to write the syntax of the length, so we are using this line to find the length of the string, okay। So only this is one method to find the length of the string। Let's get move to the second question, move it, and this is your second question। So this is your second question. We can comment it. Write a Python program to count the total number of vowels in a string। एक string दी गई है, हम उसमें total number vowels हमें find करने हैं। So क्या find करने हैं हमें? total number of vowels। vowels क्या होते हैं? vowel equals to हमारे होते हैं A, E, I, O, like ये हमारे vowel, ये हमारे small letter में हो गए। और यहाँ पे हमारे आ गया vowel equals to में वही सेम चीज ए आई ओ। ओके, सो हमें अगर यूजर एंटर करता है वॉवल्स लाइक स्मॉल लेटर में, सो वी आर यू, हमें तो ये चीज फाइंड करेंगे हम। अगर यूजर हमारा फाइंड करता है अपर केस में कुछ लिखता है, तो अपर केस में भी हमें ये चीज ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस होते हैं, तो थोड़ा एक डीपली चीज पढ़ने वाले, कुछ हम रटने वाले नहीं है। ओके, एक हम फिर से एस टी आर ले लेते हैं। एस टी आर में मान लो हम एक से एक ऐसे हम पूछ सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, ठीक है। नेम लिख सकते हैं श्रेय या स्नेह, श्रेया, लाइक श्रेया, we can write it श्रेया कपूर, स्पेलिंग गलत हो, आई डोंट नो स्पेलिंग गलत है क्या, गलत है, श्रेया कपूर, ठीक है, श्रेया कपूर।
सो इसमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ हमारे क्या कहते हैं वॉवल्स है इसके अंदर। तो देखो, एक होता है हमारा फाइंड मेथड, तो हम यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं, काउंट मेथड का यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन है तो ये चीज ट्राई करेंगे एट द बिगिनिंग। अगर हमारा इन दोनों चीजों से भी नहीं होता है तो हम थर्ड चीज को भी ट्राई करके देखेंगे कि हमारा सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज हम कि इसको सबसे पहले हम इसको फाइंड या काउंट मेथड से ट्राई करते हैं। ठीक है, हम करते हैं फाइंड, यहाँ पर फाइंड करेंगे ए ई ई आई। देखो, आई नो कि आंसर इसका गलत ही आने वाला है, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व, क्योंकि जो जो दिमाग में आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी रटने वाले नहीं है, हर एक चीज को डीपली एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि लॉजिकली हम क्या सोचते हैं। सो वी कैन रन इट। सो इट गिव -1। -1 का मतलब क्या है? अगर फाइंड का हम फाइंड का देखो तब यूज करते हैं जब कोई वर्ड हमें फाइंड करना है। अगर उस स्ट्रिंग के अंदर अगर वो वर्ड नहीं मिलता है, अगर मान लो ये पूरा वर्ड हमारा इसके अंदर नहीं है, तो ये -1 दे देगा। अगर इसके अंदर मान लो यही चीज मैं इसको हटा देता हूँ, एक्स, देखो, तो इसने दे दिया फिफ्थ नंबर पे हमारा ए है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, तो हमने आंसर दे दिया क्योंकि था ये इसके अंदर, तो इसने फाइंड दिया। अगर मैं यहाँ पे एच एच लिख, यहाँ पे मैं लिख देता जेड लिख देता, तो जेड तो इसके अंदर है ही नहीं, तो -1 देगा। स्टार्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है? हम तो हमें ये फाइंड करना था, तो ये क्या एक पूरा वर्ड है, फाइंड का इसको ट्रीट करता है वर्ड करता है, ना कि ये करेक्टर करता है। अब फाइंड हमारा लूप की तरह तो काम करेगा नहीं कि पहले ए को चेक करेगा फिर ई को चेक करेगा, ये देखेगा कि अगर हमारा ये इसके अंदर अवेलेबल है, ये इसके अंदर अवेलेबल है तो आंसर देगा। अगर ये पूरा अवेलेबल है इसके अंदर तो आंसर हमारा देगा कि ये किस पोजीशन में 13 पोजीशन पर है। अगर मैं इसको यू को हटा देता हूँ तो क्या होता है, तो अभी देखो 13 पोजीशन पर हमारे ये सारी चीजें 13 पोजीशन पर अवेलेबल है। अब मान लो मैं यहाँ से ई हटा देता हूँ, ई हटा दिया मैंने, तो -1 दे दिया। तो इसने क्या फाइंड करा कि ए आई ओ, मतलब ए हो और एक बीच में स्पेस हो और आई हो और एक हमारे यहाँ पे ओ हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारा ढूंढने वाला है। तो इसको ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, तो इसने -1 दे दिया, तो हमारा फाइंड तो कैंसिल हो गया, हम फाइंड तो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे हम काउंट का भी यूज कर सकते हैं, देखते काउंट से भी निकलता नहीं, तो काउंट से दे रहा है 0, कि ये पूरा वर्ड इसके अंदर है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि एक्स कर देता हूँ, तो ए मेरा 3 टाइम आया इसके अंदर, तो ए मेरा यहाँ पे आया है और ए मेरा यहाँ पे आया है, और बस दो, एक बार और एक ए मेरा यहाँ पे आया है, तो मेरा 3 टाइम ए आया है। सो ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि काउंट का भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब क्या है, अब थर्ड केस क्या आता है कि हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा लूप क्या काम करेगा कि लूप हमारी हेल्प करेगा कि वो स्ट्रिंग के पहले करैक्टर को चेक करेगा, फिर स्ट्रिंग के दूसरे करैक्टर को चेक करेगा, स्ट्रिंग के तीसरे करैक्टर को चेक करेगा, स्ट्रिंग के फोर्थ एंड सो ऑन हमारा चेक करता रहेगा। वो एक एक करैक्टर को चेक करेगा और उसमें से जो जो हमारे बबल होंगे उनको एक हम खाली स्ट्रिंग ले लेंगे और उसके अंदर हम वहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक वो ले लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ बबल्स हमें काउंट करते हैं, तो हम खाली एक स्ट्रिंग लेंगे। हम खाली स्ट्रिंग तो नहीं लेंगे क्योंकि हम नंबर्स की फॉर्म में काउंट करेंगे, तो हम स्ट्रिंग नहीं लेने वाले, क्योंकि स्ट्रिंग में हम कुछ इंसर्ट या अपेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 0। जैसे ही हमारा नंबर प्लस हो, जैसे ही हमारा मान लो यहाँ पे हमारा ई पे आ जाए, जैसे ही हमारा ई आए तो यहाँ पे +1 हो जाए, फिर ए आए, फिर +2 हो जाए। सो लाइक दैट वी कैन यूज द काउंट। पे हम लूप का यूज करने वाले हैं। सिंपल थर्ड केस में हम लूप का यूज करने वाले हैं, तो कुछ रट नहीं रहे हैं, वी आर नॉट एनीथिंग, रट नहीं रहे हैं हम यहाँ पे लॉजिकली चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डिटेल में होगी वीडियो आई नो, बट यहाँ पर थोड़ा हम लॉजिक्स का यूज करें कि हम लॉजिक्स का कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैसे कि हमें लॉजिक यूज करना है, कोई भी चीज रट के देख के नहीं करनी है। सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं।
सो इस अभी इस लाइन को हम कमेंट करेंगे, तो इसका तो कोई यूज है नहीं, इसका भी इसको चलो हटा ही देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलाएंगे, दो लूप होते हैं हमारे, लूप एंड हमारा वाइल लूप। ठीक है, तो वी हैव टू लूप्स, फॉर लूप एंड वाइल। तो हम इसका यूज करेंगे फॉर लूप एंड वाइल लूप। सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप बताओ हम क्या कहते हैं, कोड को रिपीट करने के लिए यूज करते हैं। तो फॉर आई रेंज, एक होता है रेंज, बट यहाँ पे हम रेंज का यूज नहीं करने वाले। फॉर आई इन, और हम यहाँ पे फॉलो लगाएंगे। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। सी लैंग्वेज में पाइथन, जावास्क्रिप्ट और सी, जावा, जावास्क्रिप्ट में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कॉलन का यूज करेंगे। और यहाँ पे स्पेसिस की इम्पोर्टेंस होती है, वो इंडेंटेशन की इम्पोर्टेंट होती है वो। यहाँ है हमारा एक टैब दबाया तो यहाँ पे आ गया, एक स्पेस, 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 स्पेस हमारे यहाँ पे आ गए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर आई इन नेम। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले ही आई, आई क्या है, आई ये यहाँ पे हमारा नेम है, तो नेम क्या है हमारा, ये है। अभी ना मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, बॉक्स को ट्रीट करता हूँ, और यहाँ पे बॉक्स लिख देता हूँ, इससे थोड़ा इजी समझ में आएगा। बॉक्स का मतलब क्या है, अब ये वाली बॉक्स की बॉक्स, ये वाली बॉक्स की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ये वाला बॉक्स चेक करूँ, मैं बॉक्स इक्वल इक्वल, यहाँ पे मेरा बॉक्स इक्वल आ जाएगा मेरा ये वाला वर्ड, क्योंकि अब ये वाली चीज मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी, ये वाला बॉक्स मैंने यहाँ पे एक्सेस करा। अब मैं इस यहाँ से इस वाले बॉक्स की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये चीज और ये चीज इक्वल है। वैसे ही हमारा क्या कहते हैं, इक्वल्स टू आई भी है ये, क्योंकि यहाँ पे अब फॉर इन बॉक्स का मतलब है आई, क्योंकि एक बार हम यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप समझ लेंगे, फिर आगे वाले क्वेश्चंस में हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। पर यहाँ पे हम फॉर लूप का, वाइल लूप का अंडरस्टैंडिंग समझते कि है। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब है फॉर आई इन बॉक्स, मतलब जो आई की जो वैल्यूज है वो हमारी बॉक्स के अंदर है। मतलब यहाँ पे हमारा ये बॉक्स वन है, और इसको मान लो बॉक्स टू। तो आई इन मतलब अंदर, मतलब आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ। आई एम इन द हाउस, मैं घर में हूँ, मैंने इन का यूज करा, मैं घर में हूँ। आई एम ऑन द हाउस, मैं घर पर हूँ। तो मतलब ऑन और इन का मतलब वही है कि अंदर हूँ मैं उसके। ठीक है, तो मतलब मैं अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमारा आई जो है वो मेरे बॉक्स की वैल्यू सारी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर आई इन बॉक्स मतलब जो बॉक्स की वैल्यू है वो मेरे आई के अंदर आ गई। या मैंने मान लो आप, या फॉर आई इन बॉक्स मतलब जो आई है हमारा वो बॉक्स के अंदर आ गया। तो बॉक्स के अंदर आ गया तो आई जो हमारी सारी बॉक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आई इक्वल टू मेरा बॉक्स हो गया। आई जो है मेरा वो बॉक्स के बराबर हो गया। तो मतलब ये मेरी तीनों वैल्यू इसके बराबर हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा ये सारी चीजें मेरे इसके बराबर हो गई। इस लूप का मतलब क्या है, बॉक्स इक्वल टू आई इक्वल टू मेरा श्रेय कपूर हो गया। तो यहाँ पे अब क्या मतलब है, अगर मैं लिखूंगा फॉर आई इन बॉक्स, तो बॉक्स इक्वल टू आई हो गया, आई इक्वल टू श्रेया कपूर हो गया। अब मैं आई की हेल्प से मैं इस बॉक्स की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। इस आई की हेल्प से मैं इस बॉक्स की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आई की हेल्प से इस घर की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरा बॉक्स है, ये मेरे घर के मेंबर्स हैं, और इस बाहर वाला ये कोई बाहर थर्ड पर्सन है। इस थर्ड पर्सन की हेल्प से मैं इस बॉक्स के अंदर जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको मैं अपडेट, डिलीट, रिमूव, काउंट, रिप्लेस, फाइंड सारी चीजें कर सकता हूँ। सारे मेथड अप्लाई कर सकता हूँ जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर, जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस होते हैं सभी चीजों को अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी इसका ये मतलब है। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको कमेंट, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे इस एरिया को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से ये वाला कमेंट हटा के यहाँ पे मैं हैशटैग का करता हूँ। ठीक है, तो ये वाली मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब देखो आई के अंदर सारी वैल्यू आ गई। अब मेरा लूप क्या करेगा, यहाँ पे मैं टैब का स्पेस ले लेता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ यहाँ पे लगाएंगे, लाइक क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, यदि आई इफ कंडीशन लगने लगाने, आई मेरा आई इक्वल इक्वल आया, मेरा आई इक्वल, सॉरी, आई इक्वल इक्वल है मेरा
AEIOU के, तो मैं यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू में काउंट प्लस 1, नहीं तो एल्स में यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्स लिखने की नीड नहीं है, हम एल्स कंडीशन को यहाँ पे नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे लाइक आपका काउंट। एक बार पहले इस लूप को चला के देखते हैं, फिर इन लाइंस का भी हम अभी मतलब करके देखेंगे, ठीक है, क्या मतलब है इन लाइंस का। तो अभी आया हमारा यहाँ पे जीरो, तो जीरो आया तो हमने कुछ तो गड़बड़ करी है। तो देखते पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते कि क्या मिस्टेक्स है। फॉर आई इन बॉक्स, आई हमारे बॉक्स के अंदर है, पहले हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमारी आई की वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा इस लाइन को हटा ही देते हैं। देखो आई के अंदर ही हमारी सारी वैल्यूज हैं। अगर मेरे को इन सभी लाइंस को एक लाइन में लेके आना है, मतलब एक ही रो के अंदर लेके आना है, तो मैं इक्वल्स टू में ऐसे कर सकता हूँ। देखो, तो मतलब मेरा ये तो प्रिंट हो रहा है, ये तो मेरा प्रिंट हो रहा है, मतलब आई की वैल्यू इसके अंदर है सभी। तो मैं यहाँ पे आई की जगह आई इन कर सकता हूँ, आई इन 5 आ गया, मतलब आंसर आ गया मेरा। मैं यहाँ पे पता है क्या यूज करने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पे इक्वल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इक्वल 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 का मतलब है कि आप ए इक्वल टू बी, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे आई इन बी, मतलब वैसे बात तो देखो सेम ही होनी चाहिए, बट कोई नहीं, इसका मतलब तो देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे आई इन यूज करने वाली है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे आए पाँच, पाँच क्या है हमारे, पांच टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, पांच। एक बार हम काउंट करते हैं, यहाँ पे SHRE, मतलब एक, दो, और यहाँ पे तीन और चार, और चार और एक पाँच। यहाँ पे हमारे टोटल कितने वॉवल्स हो गए, हमारे पांच हो गए। पांच ई हो गया, ए हो गया, ए हो गया, फिर से ई ए यू और यू हो गया, हमारे टोटल पांच वॉवल्स इसके अंदर। मैं यहाँ पे एक और बढ़ा के देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल पांच वॉवल्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लो आपका AEIO, और यहाँ पे मैं आई बढ़ा के देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, छह वॉवल्स हो गए। अब यहाँ पे मैं एक बार कैपिटल आई करके देखता हूँ, क्या इसको भी काउंट कर रहा है, नहीं भाई, कैपिटल भी आई। एक बार कैपिटल आई करता हूँ तो इसने काउंट क्यों नहीं करा। सो ये आंसर क्या दे रहा है, छह आंसर दे रहा है, तो मतलब ये गलत है। तो चलो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। बॉक्स श्रेया कप्पू, आई आई आ गया यहाँ पे, सही है। बॉक्स रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। फॉर आई इन बॉक्स आ गया, ओके। काउंट प्रिंट आ गया, ओके। यहाँ पे सारा कुछ आ गया मेरा, ओके। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के देखो दो मेथड हैं। हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट अपर केस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपर एक हमारा मेथड होता है जो हमारे उसको कैपिटल कर देता है। तो यहाँ पे इसका आ गया केस हमारा जीरो। यहाँ पे जीरो की जगह तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें लोअर केस में करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो चीज़ें हैं वो लोअर केस में लिखी हुई हैं। तो देखो अब इसने आंसर 8 दे दिया। इसका मतलब ये है, जब बॉक्स वन की वैल्यू जब ये यहाँ पे आई के अंदर जाएंगी या यहाँ बॉक्स पे आएंगी, तो सारी वैल्यू ऑलरेडी लोअर केस में हो जाएंगी, हमारी सभी वैल्यू की हमारी लोअर केस में हो जाएंगी। कोई भी चीज़ हमारी अपर केस में नहीं रहेगी। तो पहला मेथड ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड हम यहाँ पे इस वाले बॉक्स में, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को अपर केस में कर सकते हैं। अपर केस में कर दीजिए आप सभी को, या लोअर केस में। यहाँ पे एरर दे रहा है, एक बार लोअर देखते हैं। वैसे यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो देखो हम इसको लगा नहीं सकते। सो अब हम यहाँ पे लगाने वाले, यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, मेरे को लगता है यहाँ पर भी नहीं लगा सकते हम। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना है, मतलब यहाँ पे भी गलत है ये, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। सॉरी यार, यहाँ पे एक बार और try करते हैं, यहाँ पे वो देखा नहीं था। लाइन नंबर 11, मतलब यहाँ पे हमारा काम तो कर गया, काम तो करा, बट क्या हुआ, यहाँ पे सारी वैल्यू हमारे यहीं कैपिटल में, यहाँ पे ओके। तो सारी वैल्यू यहाँ पे हम करेंगे अपर केस में, अपर केस में।
तो आ गया। ओके, तो यहाँ पे तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू आ रही है हमारी लोअर केस और कैपिटल केस में। ठीक है, यहाँ पे आके जब हमारा ये सारा सॉल्व हुआ तब उसको अपर कर रहा है, तो इस वाले मेथड को हम यहाँ से हटा के यहाँ पर लगाते हैं। ये जो यहाँ पे आ गया जीरो। सो भाई ये तो नहीं कर सकते, हम बस यहाँ पे ही लगा सकते हैं। और हम एक काम और कर सकते हैं, आप ए बी सी डी ई सॉरी ए ई आई आई ओ लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा काम कर गया। तो दो मेथड है, एक हम यहाँ पे लगा सकते हैं पर केस में हम ए ई आई ओ टाइप कर सकते हैं, या हम डॉट लोअर कर सकते हैं। यहाँ पे डॉट लोअर कर सकते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी फंक्शन को चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, लाइक आपने लोअर लिखा, आपने डॉट लोअर लिखा, तो अगर आपने एक सिंगल लेफ्ट साइड का ब्रैकेट आपने लगाया तो ऑटोमेटिक राइट साइड का लग जाएगा। तो इसकी एक करेक्ट पोजीशन है यहाँ पे लिखने की। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लगा रहा था डॉट लोअर, अगर मैंने लेफ्ट ब्रैकेट लगाया और राइट ब्रैकेट मेरा ऑटोमेटिक नहीं लगा, राइट ब्रैकेट मेरा ऑटोमेटिक नहीं लगा, तो क्या हुआ, मैंने राइट ब्रैकेट अपने हाथ से खुद लगाया, तो यहाँ पे ये इसकी करेक्ट प्लेस है ही नहीं लगाने की। तो कभी भी अगर आपको इंटरव्यू या कहीं भी सॉल्व क्वेश्चन करते हो, अगर आपने डॉट लोअर लगाया या डॉट अपर भी लगाया, अगर आपने लेफ्ट ब्रैकेट लगाया और राइट आपका ऑटोमेटिक नहीं लगा, तो मतलब यहाँ पे ये गलत पोजीशन हमारी मेथड्स को यूज करने की, फंक्शंस को यूज करने की। ठीक है, देखो आंसर तो हमारा आ चुका है, हमने 8 वॉवेल्स काउंट कर लिए। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम। बॉक्स श्रेया कप्पू आई हो यू। ओके, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया था कि आई का हमारा किसके इक्वल है, आई इक्वल है हमारे बॉक्स के, और बॉक्स हमारा इक्वल है इसके। ठीक है, बॉक्स हमारा इसके इक्वल है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया हो कि ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखो लूप क्या करता है, हमने आई का मतलब समझा, इनका मतलब समझा, बॉक्स का मतलब भी समझ लिया, पर हम फॉर लूप का मतलब और समझ के देखते हैं। एक बार फॉर लूप का मतलब भी हम समझ के देखते हैं। फॉर लूप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो फॉर क्या करता है, फॉर जो काम करता है वो हमारा आई के ऊपर काम करता है, और इन हमारा काम करता है बॉक्स के ऊपर काम करता है। तो अब फॉर क्या करेगा कि आप जो है, अब जो आई में से एक वैल्यू उठाएगा एच एस को, तो आई को एक बोलेगा कि आप एक वैल्यू को सिलेक्ट करो, पहली वैल्यू को एस को, पहले इस पे लूप चलाओ, फिर एस के बाद लूप चलाने के बाद फिर एच के ऊपर लूप चलाओ, एच के ऊपर लूप चलाने के बाद आर के ऊपर लूप चलाओ, आर के ऊपर लूप चलाने के बाद ई के ऊपर लूप चलाओ, ई के ऊपर लूप चलाने के बाद वाई के, ऐसे ऐसे करके सब के ऊपर लूप चलाओ, फिर स्पेस के ऊपर भी लूप चलाओ, हर एक चीज के ऊपर लूप चलाओ। तो फॉर क्या करेगा, आई से बोले कि आप पहले एक वैल्यू को उठाओ, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले आई इक्वल टू हमारा आ जाएगा एस, आई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा एस, वो बोलेगा पहले आप एस को चेक करो। तो यहाँ से हमारी अब आई की वैल्यू क्या होगी, एस के इक्वल होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आई इक्वल टू में एस हो गया, मतलब आई क्या है यहाँ पे एस है, मतलब ये कहेगा आपको क्या कहते हैं, ये कहेगा कि एस इन, एस अगर इसके अंदर पाया गया, ये वाला कैपिटल एस अगर इसके अंदर पाया गया, तो काउंट इक्वल्स टू में काउंट प्लस वन कर दो। अभी यहाँ पे क्या है, हमारी काउंट की वैल्यू क्या है, अभी हमारी काउंट की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, अभी हमारी काउंट की वैल्यू यहाँ पे अभी जीरो है, तो काउंट की वैल्यू जीरो है। अगर ये वाला एस इसके अंदर पाया, ये वाला एस अगर इसके अंदर पाया गया, तो काउंट इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा जीरो। ये वाला एस अगर इसके अंदर पाया गया तो काउंट इक्वल्स टू वन आ जाएगा, वरना ये वाला हमारा जीरो रह जाएगा। नहीं तो एल्स वाली कंडीशन हमारी पास हो, जो कि हमने लिखी नहीं है, तो हमने क्या लिखा है, एल्स में भी ब्लैंक लिखा है कि आप कुछ मत करो बस। फिर एस, जब एस हमारा कंप्लीट हुआ, जब आई इक्वल्स टू एस था, तब उसने काउंट करा, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करा, मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिया ब्रैकेट जीरो जीरो, मतलब काउंट, मतलब यहाँ पे समझ लो काउंट इक्वल्स टू जीरो प्लस वन, हमारा वन हो जाएगा। बट ये हालत भी हमारी मैच करी नहीं, तो ये हमारी एल्स में कंडीशन चली जाएगी, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारे एस के बाद आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा एच, एच को चेक करेगा, एच इन, एच इसके अंदर है नहीं है, तो एल्स में गई कंडीशन, कुछ मत करो। एच के बाद फिर आएगा आर, आर को चेक करो,
आर को चेक करो, आर को चेक करो, आर इसके अंदर है तो +1 करो, वरना 0 करो, मतलब नहीं है तो इसको 0 कर दो। तो अभी भी काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद हमारा आता है ई, ई इसके अंदर है, ई इसके अंदर है गाइस, ई इसके अंदर हैगा, मतलब यहाँ पे क्या करो आप काउंट +1 कर दो, मतलब यहाँ पे क्या काउंट +1 कर दो, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारी काउंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। काउंट जैसे 1 हुआ तो पहले 1 + 0 1, तो काउंट की वैल्यू चलो अभी मान लो यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। फिर हमारा ई के बाद चेक करेगा यहाँ पे ये बाई को चेक करेगा, बाई भी इसके अंदर नहीं है। बाई के बाद फिर यहाँ पे हमारा चेक करेगा, अरे यार क्या हुआ, बाई के बाद यहाँ पे हमारा आएगा ए को चेक करेगा, ए इसके अंदर हैगा ए इसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा +1 था, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, हम आप हो जाएंगे, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्पेस को काउंट करेगा, स्पेस इसके अंदर है नहीं है, और फिर के को काउंट करेगा, के इसके अंदर है नहीं है, ए को काउंट करेगा, फिर से ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर 3 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा काउंट करेगा। अगर मैं इसके अंदर एक स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे ये स्पेस को भी काउंट करेगा। यहाँ पे क्या एक स्पेस हो गया, 2 स्पेस, यहाँ पे चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, मतलब टोटल 4 है। अभी आंसर क्या 8 है, तो अब 12 हो जाएगा हमारा आंसर। तो पहले मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, इसको चेक करने के, काउंट इक्वल्स टू, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अभी क्या है, इसने 11 नंबर लाइन में एरर दिया है। एरर क्या है हमारा, आपका आई एन, देखो ओके सॉरी, ये वाली हमने यहाँ से नॉर्मल, अब हमारा पहले देखो 12 आ गया आंसर इसका। 12 कैसा आया आंसर, वही सेम चीज कि हमारा आंसर यहाँ पे 12 आ गया। सो यही तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हमारे 12 आंसर आ गया। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अब ये वाला तो लाइन समझ में आ गई, यहाँ पे हमारा काउंट +1 हो रहा था, और यहाँ पे हमने अब प्रिंट किसको करना है, हमें डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले हमें इस लाइन को करना है, क्योंकि हमारा काउंट यहाँ पे बढ़ रहा है ना कि यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे तो लूप चल रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है, और काउंट प्लस यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है हमारी 12 यहाँ पे आई है। तो हम डिस्प्ले इसको नहीं करेंगे, हम डिस्प्ले इसको करेंगे, और ना ही हम डिस्प्ले इसको करेंगे। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जो बॉक्स में लिखा है। सो आंसर मेरा ये आएगा अगर मैंने इसको डिस्प्ले करा तो इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो अब इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे काउ द नंबर इज कितना, कितना आ गए टोटल, 24 आ गए हमारे, ठीक है। अब ये 24 कैसा है, क्योंकि 12 + 12, 12 तो ऑलरेडी है, 12 में हमने 12 हमारा फिर से प्लस हो गया, तो हमारा 24 हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया 12, क्योंकि देखो जितना डिटेल में समझेंगे उतना ही हमें आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो वीडियो देखो कितने मिनट की हो गई है, 35 मिनट में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। अभी इसको ही हम क्या कहते हैं, बाय लूप से भी कर सकते हैं। मैं कमेंट करता हूँ, इसी वाली लाइन को हम लेते हैं, यहाँ पे इसको हम बाय लूप से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय में क्या होता है, सबसे पहले वही हम काउंट लेंगे, काउंट की वैल्यू में प्लस कराना है, आई इक्वल्स टू हमारा 0 आएगा, क्योंकि वाइल लूप में हम पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाइल लूप लगाएंगे, वाइल को आई ग्रेटर देन हम लेंगे बॉक्स के, और प्लस कर देंगे। बॉक्स की हमें लेंथ देनी पड़ेगी, क्योंकि हम बॉक्स की डायरेक्ट ऐसे हम फॉर लूप की तरह यूज नहीं कर सकते ना इसको। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, आई इन हमारा फिर से इसी वाली चीज को हम ले लेंगे, आई हमारा इसके अंदर पाया गया। तो आप करिए काउंट प्लस इक्वल टू में प्लस इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा यार कि ये चीज हमारी सेम ही है। आप इसको या ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो, या इसको आप ऐसे लिख लो, तो एक दूसरे के इक्वल इक्वल है। ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, या आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, दोनों चीजें बराबर है। तो ज्यादातर हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमारा कोड कम लिखा जाए,
कोड हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। एल्स कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आई प्लस इक्वल में यहाँ पे हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बंद करना पड़ेगा, ये हमारा लूप, नहीं तो हमारा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। हमें क्या प्रिंट करना, काउंट प्रिंट करना है। एरर नंबर लाइन नंबर 19 में ये हमारा एरर दे रहा है, इफ आई इन, क्या एरर है यार। ओके देखो, लूप को लिखने का कुछ तरीका होता है। यहाँ पे हम आई, अगर हम मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करके देखूँ, यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करके देखूँ एक बार, आई प्रिंट, इस वाली लाइन को भी मैं थोड़ा कमेंट कर देता हूँ, आई इन, प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आई को, तो आंसर क्या आता है? आंसर नंबर 21 नंबर लाइन में, मतलब अभी इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, तो आंसर मेरा आएगा लाइन नंबर 22। 22 को क्यों करवा रहा है प्लस, आई प्लस इक्वल टू 1, ये तो ठीक लिखिए, सॉरी इसको यहाँ पे लिखना थोड़ा स्पेस का दिक्कत हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट करा, 0 से लेके 12 तक, तो हमारा 12 तो प्रिंट करा, हमारा 12 तो हमारे कितने इसमें, इससे टोटल इसकी लेंथ को प्रिंट करिए, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इसने, सॉरी इसने 12 करेक्टर्स को प्रिंट करा है, 12 वोवल्स को प्रिंट करा है। इसमें हमारे 12 वोवल्स थे क्या, सॉरी वोवल्स इसमें हमारे 12 थे, 1 2, अच्छा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस भी लगाया हुआ था ना, यहाँ पे हमने स्पेस भी को भी काउंट कर रहा था, तो इसने टोटल 12 काउंट करे थे। बॉबल 12 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है, तो वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अंडर स्कोर भी डालता तो अंडर स्कोर को भी काउंट करता, अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ तो टोटल जितने बॉबल तो उनको ही काउंट करेगा, बट मैंने स्पेस डाला हुआ है, तो 1 2 3 4 तो मेरे यहाँ पे स्पेस ही हो गए, फिर मेरे बॉबल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे वोवल्स ही होगा, 4 मेरे स्पेस हो गए, तो टोटल 12 होगी क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, हम देखो 12, ये हमारे 0 से लेकर हमारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, हमें नंबर्स को तो प्रिंट नहीं करता ना। अगर मैं इसको कमेंट करने के बाद एक चीज और दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा आई, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा आई, एक सेकेंड स्पेस, सॉरी इसको कमेंट आउट से हटाना पड़ेगा, ठीक है। लाइन नंबर 6 में क्या दिक्कत है, सॉरी लाइन नंबर 8, 8 में भी क्या दिक्कत है, इसको हटाओ, हटाओ। लाइन नंबर 8 फिर से फॉर, इसको एक्स्ट्रा लाइन से, अब देखो इसने हमारा नंबर्स प्रिंट करे, और यहाँ पे हमने जो प्रिंट करा था इसने हमारी 1 2 3 प्रिंट करे, यहाँ पे इसने नंबर्स प्रिंट करे, यहाँ पे इसने 1 2 3 प्रिंट करी है, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे हमारी 1 2 3 प्रिंट हुई, तो 1 2 3 तो प्रिंट कर दी नहीं है, तो हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हमें क्या प्रिंट करना है, नंबर्स। हमें 1 2 3 प्रिंट नहीं करनी है, हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा फॉर लूप में हमारा सिचुएशन ये, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ और ये लगा दूँ, और इसको मैं कमेंट आउट से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखो इसको मैं नॉर्मल करता हूँ और रन करके देखता हूँ एक बार, तो मेरा क्या हुआ, नंबर्स प्रिंट हुए, देखो यहाँ पे भी मेरे नंबर्स प्रिंट हुए, अब यहाँ पे मेरी 1 2 3 प्रिंट हो गई, 1 2 3 प्रिंट हुई, नंबर्स तो प्रिंट नहीं हुए। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई के अंदर में सारे बॉक्स के अंदर, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसे काम करेगा ये, तो हमारे अब देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 आई, सारी चीजें आई आई प्रिंट हुई, आई 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 आई, देखो सारी, तो आपको इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये थी हमारी 1 2 3, ये हमारी खाली 1 2 3 प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे ये हमारी 1 2 3 प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे श्रेया, यहाँ पे कपूर, यहाँ पे आई आई आई, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इसकी इंडेक्सिंग को उठाएगा। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर जीरो प्लेस पे जो वर्ड है उसको प्रिंट कर दो। बॉक्स के अंदर एस है, एस को प्रिंट कर दो। बैक्स के ऊपर वन को प्रिंट कर दो। ऐसे प्रिंट करेगा। ओके, सो ये हमारा करेक्ट वे है। इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, अच्छा हटा देते हैं और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इस सबको मैं दोबारा करते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे इस लोग को, इसको। देखो बारह आ गया आंसर हमारा, ये हमारा प्रिंट हुआ और ये हमारा बारह आंसर आ गया। ठीक है, इस लाइन को हम प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल से इससे रिप्लेस कर देते हैं। द नंबर ऑफ वोवेल इज 12 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी लगता है, कोई नहीं। हमने यहाँ पे वाइल लूप और फॉर लूप दोनों से प्रॉब्लम कर ली, गोल्ड वाली। थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम। रिवर्स करना है यार इसको उल्टा। रिवर्स के तो कई मेथड होते हैं। रिवर्स तो हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स तो हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सॉरी, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे कोई एस टी आर इक्वल टू में यहाँ पे लिख रहा है श्रेया लिख रहा है। इसको हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए देखो हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू में हम इस पर लूप भी चला सकते हैं, नेगेटिव लूप चला सकते हैं, पॉजिटिव लूप चला सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कितने तरीकों से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। देखो पहला तरीका आपका ये एस टी आर ब्रैकेट में कॉलन कॉलन माइनस कॉलन कॉलन लाइक आपका बंद कर दीजिए -1, प्रिंट हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो देखो ये पहला तो आपका ये उल्टा हो गया। अब ये कैसे काम करा, ये हमारा काम करता है लाइक आपका, मैं आपको यार ये चैट जीपीटी से समझा देता हूँ, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं दूसरा चैट कर लेता हूँ, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेन इट। देखो इसने क्या करा, ये लिया, फिर ये लिया, तीन लाइन है ना हमारी। ठीक है, देखो इंडेक्सिंग उठाई। एस पे हमारी क्या थी, जीरो इंडेक्स, S0 H0 ये सब हुआ था। फिर नेगेटिव इंडेक्स हमारे आया था -1 -5। नेगेटिव उल्टी से उल्टी इंडेक्सिंग चलाई थी, -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो ए क्या है, -1 है। ठीक है, इसने उल्टा पकड़ा, एस को -6 दिया। स्लाइसिंग करी। स्लाइसिंग होती है स्टार्ट, स्टॉप, और एक होती है हमारी स्टेप। स्लैशिंग होती है स्टार्ट, स्टॉप, और एक होती है स्टेप होती है। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक जाएगा हमारा। तो HRE आएगा, HRE आएगा। 1 से लेके HRE आया, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ ना कि 0 से। ठीक है, कॉलन कॉलन माइनस ब्रेक करके समझाओ। देखो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये वाली ब्लैंक छोड़ दो, इसका मतलब ये वाली ब्लैंक छोड़ दो, ये ब्लैंक छोड़ दो, और ये दे दो -1। क्या -1 आ गया। पाइथन इसको समझाता है 5 -7 -1। इसका क्या मतलब है, 5 माइनस। पाइथन इसको समझता है, लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करो और -7 एक स्टेप पीछे जाओ। -7 मतलब पीछे जाओ, सारे कवर करो। -7 मतलब सारे कवर करो और बिगिनिंग तक आओ, मतलब 0 तक आओ। यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब 7 तक जाओ, 0 तक आओ। एग्जीक्यूशन से यार, ओके, ऐसे सब एग्जीक्यूशन हो गया।